Call Mr. Bachchan, but before I call him, I want to say something since I have this privilege here, that it is such an honor and such a privilege to work with. Hi Raju, we start. So it's such a privilege. We'll play the trailer once more for Raju. He hasn't seen it on a big screen. One more time, please. So that was 3 times. Thank you. Coming back to where I was, I just want to tell you guys that it is such a privilege and honor to work with people like Mr. Amitabh Bachchan and Farhan Akhtar. In my opinion, these are 2 of the finest actors we have in India. And when I see the movie, which we are editing at this stage, I have yet to see 2 actors performing as brilliantly as I see them perform. So I'm extremely grateful publicly to you, sir, and to you, Farhan, for being a part of this film and to really bringing characters that we spent 5 years writing to life. And with that gratitude, I ask Mr. Bachchan to join me, please. नमस्कार देवियों और सज्जनों और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी भारी तादाद में आज आप इस ट्रेलर लॉन्च में आए हैं। विनोद के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है। जब ये इंस्टीट्यूट से निकले थे तब से ये मेरे साथ फिल्मों में काम करने की सोच रहे हैं। 30-40 साल लग गए इनको और उसके बाद जाकर के इन्होंने तय किया कि शायद मैं इस लायक हूँ कि अब इनके साथ काम कर सकूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पब्लिकली। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि जिनको मैंने अपने सामने पैदा होते हुए देखा था, फरहान अख्तर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए आपके सामने। Hi, good afternoon, everyone. This truly is a very, very memorable day for me. Of course, to work with Vidhu, his production, his film, from the time of Parinda, he's someone I've admired tremendously. So to work on a script that has been written by him and by Abhijat, it feels great. And of course, to collaborate with really the one and only Mr. Bachchan himself. I've said this over and over again in every single interview that I've ever done. One of the predominant reasons for me to want to be in the world of movies was because of your work with Uncle. So it just feels, it's almost dreamlike on some level to be sharing this kind of screen space with him. We've had the fortune of working, or I've had the fortune of working with him once before, but this really is a whole other level. And also, of course, one can never forget the most important person in the equation, which is the director, Bijoy, who's here. So Bijoy, please look at us. I want to praise Bijoy before he speaks. I want to tell you that while we were working, come here Bijoy, come in the center, come between the 2 actors. So Bijoy was, one fine day, we were working on the script and there was a cake that came to somebody's birthday. And Bijoy said, sir, it's also my 1 year I've been on this year. That's when I realized that it was 1 year already. We almost spent 2 years writing with Bijoy, and I can tell you this again publicly, that the Bijoy that came 2 years back to the office, and now I see such growth, I see such wonderful growth that I am very, very proud of this young man. Thank you, Bijoy. Thank you so much. I think I'll just add to what everybody said here. I feel absolutely honored and privileged to be in such elite company. I mean, I think every Indian filmmaker at some point wanted to work with Mr. Bachchan, and I think I'm one of those privileged few. And of course, working with Farhan, working with Vinod sir, working with Abhijat, it's literally, these are people who I have revered, I've admired their work, and I always wanted to be somewhere close to, in a position where I can at least interact with them. The fact that I got to make a film with such people is absolutely a dream come true for me. And I really hope you like the teaser, and I really hope the film turns out to everyone's expectation. Before you ask Amitji questions, let me ask Raju to join us, who is helping us immensely in the editing. He's the boss there at this given moment. So that's Raju Hirani for you, straight from the edit room. Thank you.
आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछते हैं अमित जी को? आप आप आइए सर। हाँ जी, चेयर स्पेशल है। एक एक्स्ट्रा चेयर मिल जाए। ये ठीक है? अमित जी, मेरा सवाल आपसे है। आपके सेंटर में आलोक हियर फ्रॉम OAFM, आपके राइट। सर ये इधर आपके राइट में। सर सवाल मेरा ये है कि शतरंज का खेल आप इन जनरल खेलते हैं कभी जिंदगी में? इन जनरल मतलब यानी कभी खेला है मैंने जी, शतरंज? कभी दोस्तों के साथ? जी 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 बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा, जैसे प्यादे हुए वजीर हुआ, उसी में रानी भी होती है, किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है इस खेल में सर आपके हिसाब मेरा ऐसा मानना है कि प्यादा जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। से? उसका कारण सर आपसे? धीमे धीमे चलता है और उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो राजा को भी मान दे देता है। और फरहान, सेम क्वेश्चन आपसे भी जानना चाहेंगे कि फिल्म से पहले। इसका एक मैं ऐड करूंगा कि धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब वो आखिरी खाने पे पहुंचता है तो वो वजीर बन जाता है, फिर बादशाह को हरा देता है। सर अभी सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो जो इन्होंने कहा उसका असली जो मतलब है वो आपको पता चलेगा। फरहान, आप खेलते हैं? और कुछ हाँ, थोड़ी बहुत हाँ। कहानी इसके अंदर छुपी हुई है। जी, वो अल्फाज से पता चल गया सर। हाँ, खेलता हूँ शतरंज। और मुझे याद है जब बचपन में जब मैं सीख रहा था तो सबसे जो फैसिनेटिंग था मेरे लिए वो था घोड़ा जो 2.5 गज चलता है। तो बाकी सब मतलब सीधे चलते हैं या डायगनली चलते हैं, मगर ये एक नॉवल सा एक पीस था। तो आई शुड बी वेरी फैसिनेटेड बाय द हॉर्स। लेकिन मैं बिल्कुल यही मानूंगा कि इन ऑल ऑनेस्टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस इज द पॉन, क्योंकि इट इज एक्चुअली द सोल्जर दैट कैन डिफीट द किंग। Good afternoon, everybody. My question is to Mr. Bachchan. Mr. Bachchan here. Sir, I'm here to ask you what everyone here wants to know. Your take on the Maggie Row that's, currently making headlines. मैडम अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। as soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that I stopped endorsing Maggie 2 years ago. We stopped I don't endorse Maggie anymore now, and that happened 2 years ago. So I haven't been associated with the product. Right, sir. And He's please he's endorsing Wazir at this moment, if you don't know. All right, all right, all right. Thank you. Bachchan sir, here. You're right. Sorry. Bachchan sir. Sorry. Ali from movietalkers.com. Yeah. बच्चन सर आपने लेफ्ट राइट बोल के इतना कंफ्यूज ओके कर दिया। बच्चन साहब, आपने फरहान के साथ लक्स में एज एन एक्टर काम किया था। उसके बाद अभी आप दोनों एक साथ एक्टिंग कर रहे हो, तो फरहान एज एन एक्टर बेटर है कि डायरेक्टर बेटर है? सर इनमें दोनों खूबियाँ हैं और कलाकार तो हैं ही बहुत खूबसूरत और अच्छे, लेकिन कई बार इनके मन के अंदर जो इनका जो अंदरूनी भावनाएं हैं एज ए निर्देशक वो कभी कभी बाहर आ जाती थी। तो और कभी कभी हम दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता था। तो ये जो कहते थे उसको मैं मानता था, क्योंकि उनके अंदर एक निर्देशक है और निर्देशक का मानना बहुत आवश्यक हो जाता है कलाकार के लिए। हेलो, सर बहुत सारे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं। पता नहीं कि अब बढ़ती उम्र में उन्हें खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न अभी जारी है और जैसे ही कोई नया खेल सीख लूंगा मैं आपको बताऊंगा। विधु सर, आपके लिए एक सवाल है। विधु सर यहाँ जी, या विधु जी, सर, जी। वैसे तो ये देखकर ही लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप पे है पूरी फिल्म, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा स्क्रिप्ट लिखने में? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं और राजू पीके में भी दे चुके हैं। हमको 5 साल लगते हैं लिखने के लिए, 4-5 साल लगते हैं। इसीलिए हमारी जो फिल्म है वो एक मेरे हिसाब से एक सर्टेन लेवल की फिल्म बन पाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होता है, और हम कोई प्रोजेक्ट बनाते नहीं हैं, हमारे को कोई स्टूडियो चलाना नहीं है, हमारे पास कोई 400 लोग नहीं हैं जिनके हमको हर महीने फीस भरनी है।
तो हम अच्छे से वही फिल्म बनाते हैं जिसमें हमको लगे कि ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। उसमें वक्त लगता है, और हर फिल्म आप देखिए, अगर पीके में 5 साल लगे ना, ऑलमोस्ट 5 years इट टुक अस, ये 5 साल लगे, उसके पहले भी 3 Idiots या आप परिंदा में जाइए, 40, हर फिल्म में वक्त लगा है। तो ये कोई नई बात नहीं, हम थोड़े लेजी भी हैं, आलसी हैं थोड़ा, ऐसा लगता है। बच्चन जी आपके लेफ्ट में, बच्चन जी यहाँ यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी 42वीं सालगिरह है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जया जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया या आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? मेरी सालगिरह नहीं है। आपकी शादी की सालगिरह हाँ, है 42वीं में। शादी आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया इसलिए मैं कह रहा अच्छा, हूँ। क्षमा चाहूँगी सर। विवाह जयंती है आज हमारी, जी और जी सर, बधाई दे सकते हैं आप। धन्यवाद, Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you for asking that question. Thank you for letting us know. पत्नी है नहीं मुंबई में जी, वो विदेश में है, और ठीक 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाहनी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, और मैं भाग आया। अब मैं वापस जा करके फिर बात करूंगा उनसे, और आपकी बात जो है उन्हें अवश्य कहूंगा। Amit ji, is that the reason that you are looking handsome today? कहाँ हो तुम? So yeah. थैंक यू मैडम, with your नतमस्तक हूँ आपके सामने, sir, बहुत बड़ी with बड़ी your- कृपा है आपकी। with your देवी जी। specific fashion styling, that chunni makes you look so handsome, and you give a tough competition to the youth sitting beside you. सर एक और Tell पिक्चर me बनाइए। who has एक जल्दी से एक और पिक्चर बनाइए। आपको किसने ये जिसमें- स्टाइलिंग करवाई बता सर? रहा हूँ। एक जल्दी से पिक्चर बनाइए जिसमें आजकल की जितनी नौजवान हीरोइंस हैं वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और इनका उदाहरण लीजिएगा। मैडम ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की। ये खास बंगाल से बनता है, बंगाल में बनता है, और जब हम अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था पीकू, उस समय जब वो कलकत्ता आई थी तो उन्होंने मुझे खरीद के दिया था। मैडम जितने वस्त्र के बारे में आपने पूछना अभी पूछ लो, एक एक करके आप पूछेंगे तो मामला बहुत हल्का हो सकता है।